Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1, Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd, 3rd chapter Indefinite Integration. In previous lectures, we have evaluated the integrals which can be reduced to standard form by algebraic or trigonometric formulae. प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें एक्सरसाइज 3.1 के जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे राइट, तो वो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे या हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे बाय यूजिंग एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब आपके सामने ऐसे इंटीग्रल्स होंगे जहाँ पर वो टेक्निक काम नहीं करेगी, सो दैट्स वाई in this lecture we will see methods of integration. So there are three special methods of reducing an integral to a standard form. 1, 2, 3. First one is integration by substitution. Second one is integration by parts. Third one is integration by partial fraction. Now we will start first method, that is integration by substitution, which is also called as reverse chain rule or U substitution method. In this method of integration by substitution, any given integral is transformed into a simple form of integral by substituting, I am repeating once again, substituting the independent variable by others. The general form of integration by substitution is integration of f of g of x into g dash of x into dx. This is equals to integral of f of t into dt, where t is equals to what? g of x. In short, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब इंटीग्रल में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस इंटीग्रल में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने की इजाज़त मिल जाती है। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है उसके प्लेस पर हम अनदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जनरली हम वो सब्स्टिट्यूट कौन सा टर्म करते हैं? टी वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में टी वेरिएबल यूज़ किया गया है। अगर कोई नोट्स वगैरह अगर आप दूसरे देखते हैं तो वहाँ पर यू सब्स्टिट्यूशन भी किया गया है, तो वहाँ पर पैनिक मत करिएगा, ओके। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि हम किसके प्लेस पर टी पुट कर रहे हैं। सॉल्व करना तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ओके। जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। So after differentiation you will get dt is equals to g dash of x into dx. So that's why in left hand side on the place of g of x we write t, and on the place of g dash of x into dx we write dt. So integral becomes integral of f of t into dt. Now integrate that integral, and after integration resubstitute the value of variable t. Let us see integration by substitution method theorem. So what is said in the statement? If x equal to phi of t is a differentiable function of t, then this integral of f of x into dx is equals to what? Integral of f of phi of t into phi dash of t into dt. This theorem shows that if we consider integral f of x into dx and
In the integral, we substitute x equal to phi of t and its derivative, then both are equal. बेसिकली इस थ्योरम की वजह से आपको इंटीग्रल को अनदर वेरिएबल सपोज करके सॉल्व करने की इजाज़त मिल जाती है। अब हम थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। देखिएगा थ्योरम के प्रूफ में फर्स्ट जो यहाँ आपको लाइन नज़र आ रही है वो हमने कैसा राइट डाउन किया है, तो जो थ्योरम में गिवन है वो हमने राइट डाउन किया है। ओके, तो गिवन क्या है, x इक्वल टू फाई ऑफ t इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो नेक्स्ट इसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है तो दैट्स वाई हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट t। तो यू विल गेट व्हाट, dx, the derivative of x with respect to t, you will get what, dt. this is equals to what, अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे फाई ऑफ टी का, तो फाई ऑफ टी का डेरिवेटिव जब आप ले रहे हैं तो फाई जनरल फंक्शन है, तो दैट्स वाई इसके डेरिवेटिव का हम नोटेशन ले लेते हैं फाई डैश ऑफ टी, फाई डैश ऑफ टी। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक इंटीग्रल सपोज कर लेते हैं, वहाँ पर हम एक इंटीग्रल सपोज कर लेते हैं, लेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और हम सपोज कर लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आता है जी ऑफ एक्स। देन आफ्टर दैट हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा वहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ, बोथ दी साइड का डेरिवेटिव लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यू विल गेट व्हाट, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव लगाओगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल, सो यू विल गेट व्हाट, द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, यू विल गेट व्हाट, एफ ऑफ एक्स। नाउ फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, राइट, जी ऑफ एक्स। हम एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं जी ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो यू विल गेट व्हाट, बाय चेन रूल। चेन रूल वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाय चेन रूल फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, आप वहाँ से जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लोगे, तो हम वो राइट डाउन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो दिस वेरिएबल एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले हम किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये जो एक्स है एक्स का डेरिवेटिव लोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी, dx by dt. Now by equation number 4, derivative of g of x with respect to x, you can write what, f of x. So just put here f of x into dx by dt as it is. Now by equation number 1 and 2, वन और टू के 1 और 2 की वजह से अब हम देखिएगा क्या कर सकते हैं, वहाँ पर x के प्लेस पर वी कैन राइट फाई ऑफ t एंड ऑन द प्लेस ऑफ dx by dt वी कैन राइट फाई डैश ऑफ t। सो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, f इक्वल टू एक्स के प्लेस पर क्या करेंगे हम, बाई इक्वेशन नंबर 1 फाई ऑफ t पुट करेंगे एंड बाई इक्वेशन नंबर 2 dx by dt के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फाई डैश ऑफ t। सो यहाँ पर राइट डाउन करिएगा लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी टी ऑफ g ऑफ x, और ये हमने क्या किया था यहाँ पर, ये एक कंसिडर किया था, ठीक है। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ दी साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ बाय टेकिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t,
you will get what? Integral and this derivative get cancel. So in left hand side आपके पास क्या टर्म रहेगा? सिर्फ और सिर्फ only what? g of x. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेट कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन सिंबल डालोगे राइट हैंड साइड में, राइट डाउन द टर्म f ऑफ फाई ऑफ t इंटू फाई डैश ऑफ t और विथ रिस्पेक्ट टू क्या राइट डाउन करेंगे आप हियर? dt, क्योंकि हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, एंड नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3 चेक करिएगा, g ऑफ x के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हो? इंटीग्रल f ऑफ x इंटू डी एक्स. तो हम वो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t इंटू व्हाट? फाई डैश ऑफ t इंटू डी टी. अभी जो हमने थ्योरम का प्रूफ देखा था तो उसके बेस पर आपके सामने कुछ रिजल्ट आते हैं. दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? करोलरीज. तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट करोलरी. सो व्हाट इज सेड इन दैट? इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन integral of f of ax plus b into dx is equals to g of ax plus b into 1 upon a plus c. So what is said in this corollary? If x is replaced by ax plus b, then take the integration of f first and then divide by the coefficient of x, that is what? a, प्लस राइट डाउन c. तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि ऐसे कंपोजिट टाइप के जब आपके पास वहाँ पर इंटीग्रल आएंगे तो आप वहाँ पर क्या करोगे? पहले f के इंटीग्रेशन लोगे आप, f का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपके पास? g. तब आप क्या करोगे? देखिएगा वहाँ पर ये ax प्लस बी आप एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे. देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे? वहाँ पर ax प्लस बी के कोएफिशिएंट, ax प्लस बी जो आपके पास है उसमें x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो वहाँ से ax प्लस बी के डेरिवेटिव से आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट करोलरी आपको ये बताती है. नाउ मूव टुवर्ड सेकेंड करोलरी. Integral of f of x raised to n into f dash of x into dx is equals to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n does not equal to minus 1. मीन्स वॉट? n की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पर? -1 नहीं होना चाहिए. इससे पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि यहाँ पर जब भी पावर का रूल आएगा तो आप वहाँ पर n की वैल्यू क्या नहीं पुट करेंगे? -1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या कहा गया है इस करोलरी में? अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसका पावर अगर आपके पास n है और इनटू प्रोडक्ट में अगर आपके पास ये जो बेस में फंक्शन है इसका अगर आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आप इस इंटीग्रल का आंसर कैसा राइट डाउन करोगे? पहले आप राइट डाउन करोगे f ऑफ x, देन आफ्टर दैट पावर में आप क्या करोगे? वहाँ से एक ऐड करोगे और उसी पावर से आप क्या करोगे? वहाँ पर डिवाइड करोगे. ओके, नाउ करोलरी नंबर थर्ड. इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c. तो इस इंटीग्रल में आप क्या देखते हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर आपके पास न्यूमरेटर में अवेलेबल है, देन इसका इस टाइप के इंटीग्रल का आंसर कैसा राइट डाउन करोगे आप? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, log of denominator. Doctor means what? Short form for denominator. Denominator plus c. तो इस इंटीग्रल में आपको क्या बताया गया है कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल फंक्शन होगा
तो चेक करिएगा कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है, देन द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज रिटन बाय log of f of x plus c, log of denominator plus c. Okay, f dash of x upon root of f of x into dx is equals to 2 root of f of x plus c. तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर इंटीग्रल में आपके पास फ्रैक्शनल फंक्शन अगर होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर में आपके पास एफ ऑफ एक्स है और अगर उसका आपके पास रूट है एंड इन न्यूमरेटर में अगर आपके पास रूट में जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो देन आप इस इंटीग्रल का आंसर कैसा राइट डाउन करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. लेकिन कंडीशन इज व्हाट, रूट में जो आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहाँ अवेलेबल होना चाहिए, इन न्यूमरेटर. तो तब हम क्या राइट डाउन करेंगे, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ओके.